किरण कुमार रेड्डी रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا خیر مقدم ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے 28ویں پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر، جس میں شامل ہے سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ المجادلہ، سورۃ الطلاق، سورۃ الصف، سورۃ الجمع، سورۃ المنافقین۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ حضرات، 28ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کی تعلیمات دی ہے اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ امید کہ آپ غور فرمائیں گے۔ اس میں کئی صورتیں ہیں اور تمام صورتیں مدنی ہیں۔ تمام صورتوں کا مزاج مدینہ کے ماحول کے مطابق ہے، یعنی وہاں کے سماج کے مسلم معاشرہ اور سماج جو بنا تھا، جو تشکیل ہوئی تھی، وہاں کے جو مسائل پیش آئے مختلف مواقع پر، اسی سلسلے میں ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے۔ وہاں کے معاشرے میں سب سے پہلے اس صورت میں سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ میں یہ تعلیم دی گئی کہ تمام مسلمانوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اور اللہ کی خاطر جتنا کچھ جد و جہد کر سکیں، جتنا قربانی دے سکیں، جتنا خرچ کر سکیں، اس کو بے دریغ خرچ کرنا چاہیے۔ کسی طرح کا بخل نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کی کوتاہ دستی نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو مسلمانوں کے اندر طاقت و توانائی پیدا ہو جائے گی اور آپس میں مل جل کے رہ سکیں گے۔ اس کے مقابلے میں نفاق ہے۔ اس صورت میں نفاق سے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ نفاق ایسا روگ ہے جو سماج کو، معاشرے کو، فرد کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ اس لیے نفاق کی ساری شکلیں، برائیاں جتنی ہو سکتی ہیں، نفاق کی سوچ، نفاق کا طریقہ، نفاق کا انداز، نفاق کا کام، نفاق کا بلیف، ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا۔ دوسری آیت سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں اس زمانے میں جو یہود بنی قریظہ کی یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور اس گروپ نے جو مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدے میں شریک تھا کہ ملک کی طرف ڈیفنس کریں گے، انہوں نے مسلمانوں کی اس معاہدے کی پاس و لحاظ نہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان مدینہ کی تباہ کر دیے جائیں گے اور لوگ اس میں شریک رہیں گے۔ تو صورتحال یہ بنی کہ ان کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ ایسے لوگ جو ملک کی تباہی کا سامان بنے، ان کو وہاں سے رخصت کر دیا جائے اور ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، یا ان کو جو تدبیر ہو سکتی ہے، جس سزا کو مستحق ہو سکتے ہیں، وہ ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ سورہ حشر میں تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو تعلیم دی کہ آپس میں مل جل کے رہو، آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، آپس میں کسی طرح کا بگاڑ نہیں ہونا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ سماج کی ساری اکائیوں کو مل کر رہنا چاہیے، اور جو لوگ کسی طرح کی دشمنی کا رویہ اختیار کریں سماج و معاشرے سے، ایسے لوگوں کو پہچان لینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو قطعاً کسی طرح کا جو رسپیکٹ کے مستحق نہ ہوں،
जो ट्रेटर हों, मुल्क के, समाज के, माशरे के, फ़र्द के, ऐसे लोगों के फितनों से, ऐसे लोगों के ख़तरों से हमेशा आगाह रहना चाहिए। किसी तरह उनके फितने में नहीं आना चाहिए, किसी तरह उनके बहलावे में नहीं आना चाहिए। उसके बाद सूरह सफ़ का नंबर आता है। सूरह सफ़ में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मुसलमानों को कि आपस में मिलजुल कर रहें, मुत्तहिद रहें और मुत्तहिद हो करके हर चीज़ करने की कोशिश करें। और पहले कौमों की मिसाल पेश की गई कि जिन कौमों ने इत्तेहाद का रवैया अख्तियार नहीं किया गया वो बिखर गए और अल्लाह ताला ने उनको ये सज़ा दी कि इस दुनिया में उनको किस ज़िल्लत और रुसवाई उन पर मुसल्लत कर दी गई और किसी तरह वो सुरखुरू नहीं हो सके, कामयाबी उनका साथ न दे सकी। और मुसलमानों को तालीम दी गई कि अपने अंदर क़ुरबानी का जज्बा पैदा करो और हर तरह की क़ुरबानी के लिए आमादा रहो और दीन को तरजीह देनी चाहिए दुनिया पर। दुनिया की जितने सामान होते हैं, आशाइश होते हैं, वक्ती होते हैं, उसके नताइज दुनिया में वक्ती होते रहते हैं, लेकिन अगर दीन को तरजीह दी जाए तो इंसान को सारी कामयाबी मिल सकती हैं जिसकी तवक्को दुनिया आखिरत में की जा सकती है। फिर सूरह जुमा की बारी आई। सूरह जुमा में भी मुसलमानों को तंबीह की गई कि यहाँ भी दौलत और तजारत के चक्कर में तुम अपने दीन को मरजूह मत करार दो, आगे रहने की कोशिश करो और कभी भुखमरी का शिकार होने का डर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कि मुसलमानों को तालीम दी गई कि मेहनत करो, कोशिश करो, मेहनत का समरा सामने आता है। यहाँ मुसलमानों को बताया गया कि आपके अंदर तवाज़ुन होना चाहिए, न दीन को छोड़ करके दुनिया में लग जाओ, न दुनिया को छोड़ करके दीन में लग जाओ, बल्कि दोनों साथ होना चाहिए। दीन दुनिया को एक साथ लेकर के चलो और ये जब तवाज़ुन होगी तो जो सिविलाइजेशन डेवलप होगी उसमें भी तवाज़ुन होगा। न यहाँ रहबानियत पाई जाती है, न ये दुनियादारी पाई जाती है। दीन और दुनिया यहाँ एक साथ चलती है। इसी की इस सूरत में तालीम दी गई है। फिर उसके बाद सूरह मुनाफ़िक़ून का जिक्र आता है। सूरह मुनाफ़िक़ून में मुसलमानों को ख़ास तौर पर जो निफाक, हिपोक्रेसी मदीना में कुछ ग्रुप के अंदर पाई जाती थी, जो हमेशा हर वक्त एक सानिया बन जाया करते थे मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला ने उनकी पहचान बता दी कि उनकी सोच कैसी है, उनकी गुफ्तगू कैसी है, उनका अंदाज़ कैसा है, उनकी साजिशें कैसी हैं, उनकी मामरत कैसी है। ये साजिशें मामरत को, उनकी ज़हनियत को निकाब कुशाई करने के बाद रब करीम ने एक वाक़े की तरफ इशारा किया कि ये लोग ये समझते थे कि मुसलमान मदीना में इनकी बुनियाद पर टिके हुए हैं और ये कि वो ज़लील हैं। तो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए ऐलान कर दिया कि मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला किफ़ालत करने वाला है और अगर मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करें तो दुनिया की कोई ताकत उनको किसी जगह पिछाड़ नहीं सकती है। और ये कि मुसलमानों पर अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, वही इंसान को बेनियाज और गनी बनाता है। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी को बेनियाज बना सके, किसी को गनी बना सके। मुनाफिकीन का एक कहना यह भी था कि ये लोग ज़लील लोग हैं, दुनिया में आबाद हो गए हैं। तो अल्लाह ने बताया कि दुनिया में हमेशा गलतकार लोग, बरखुद गलत किस्म के लोग हमेशा अच्छे लोगों को भी ये ताना देते आए हैं कि ये ज़लील लोग हुआ करते हैं। पहले भी रहा, अब भी है, क़यामत तक की चीज़ जारी रहेगी कि हिपोक्रेट किस्म के लोग, मुनाफिक किस्म के लोग हमेशा लोगों को, नेक लोगों को, अच्छे लोगों को, मुखलिस लोगों को ये ताना देते रहेंगे, ये दलिदर लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, समाज माशरे पिछड़े लोग हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त होते हैं अल्लाह की निगाह में भी, और अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे लोगों की इज़्ज़त होती है कि जो सही मानों में मुखलिस होते हैं, नेक लोग हुआ करते हैं। और फिर ये तालीम देने के बाद मुसलमानों को तसल्ली दी गई कि मुसलमानों किसी तरह किसी की साजिश से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी मौजूद है, अगर तुम्हारे अंदर इखलास मौजूद है और दीन के लिए हर वक्त आमादा हो सकते हो कि तरजीह देते रहो और दीन के लिए जाफिशानी और क़ुरबानी का जज्बा रखते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी महाद पर पीछे नहीं ढकेल सकती है, न कोई साजिश किसी तरह की कामयाब हो सकती है। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्स रसोई, पीर से शनिचर
दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद सूरह तगाबुन में मुसलमानों को ये बताया कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आएगी, जज़ा और सज़ा का मसला पैदा होगा, अल्लाह ताला हिसाब किताब लेंगे और ये कि हर इंसान अपने अमल के हिसाब से अच्छा या बुरा उसके सामने आएगा। अच्छे लोग शायद काम होंगे, बुरे लोग अफसोस करेंगे और आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे कि हम दुनिया में रहे, हमने बुराई की, हमने ये खराबी की, हमसे ये पछतावा हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये तमाम मसाइल को सामने रखते हुए मदनी माशरे के अल्लाह ताला ने उसी बीच में इस पर भी हमेशा तंबीह करने की कोशिश की। देखो तफसील के साथ याद रखो क़यामत आने वाली है, किसी तरह भी इस सिलसिले में गफलत नहीं होनी चाहिए। अगर गफलत के शिकार हुए तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और आखिरत में कामयाबी नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा डायलॉग लोगों को पेश किया गया कि लोग कैसे क़यामत में बात करेंगे और कैसे क़यामत की हौलनाकियाँ होंगी और कैसे सज़ा होगी। जो लोग बागी होंगे, जालिम होंगे और जो मुसलमान होंगे, ऐसा अल्लाह ताला उनको शाद काम फरमाएगा, किस तरह वो कामयाबी से खुश होंगे और किसी तरह का उनको गम और परेशानी ना होगी। उसके बाद सूरह तलाक़ में तालीम दी गई कि तलाक़ क्या है, तलाक़ कैसे होनी चाहिए, तलाक़ की क्यों ज़रूरत होती है और तलाक़ देना क्या समाज माशरे में उसकी क्या हिस्सत होती है। तलाक़ के सिलसिले में सारी तालीमात दी गई हैं और ये वाज़ेह किया गया है कि तलाक़ का तस्वुर कोई घिनौना तस्वुर नहीं है, बल्कि ये कि बसा औक़ात इंसान के लिए राहत होती है। तलाक़ बसा औक़ात इंसान के लिए बोझ होता है, वो बोझ काट दिया जाता है, उतार दिया जाता है। बसा औक़ात तलाक़ इंसान के मुसीबतों से निजात देने के लिए सबसे बड़ा हरबा और ज़रिया हुआ करता है। तो फिर उसके लिए तालीम दी गई कि तलाक़ की शक्ल क्या होती है, तलाक़ कैसे देना चाहिए और तलाक़ से किस तरह निपटना चाहिए और इस्लाह और सुधार की क्या कोशिशें इसमें हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ों की तरफ गाइड कर दिया गया है। और फिर वही तज़कीर की बात, इबरत की बात कि देखो तमाम चीज़ों में जो भी मामलात हों, तसर्रुफ़ात हों, अल्लाह को याद रखना चाहिए, अल्लाह को हमेशा से डरना चाहिए और अल्लाह की निगरानी को ध्यान रखना चाहिए और सही रास्ते को अपनाना चाहिए। इसी में इंसान के लिए खैर है, इसी में इंसान के लिए फलाह है, इसी में इंसान के लिए कामयाबी है। आखिरी सूरत सूरह तहरीम है। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने गोया पूरे ग्रुप जो 7 सूरतों का ग्रुप है, पूरे इस ग्रुप को अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि देखिए कोई खुलासा पेश कर दिया है कि पहले तो एक वाक़े की तरफ इशारा किया कि समाज माशरे में कितना भी बेहतर हो, कहीं भी कोई गलती और ख़ता हो सकती है। इस गलती और ख़ता को पर तंबीह की जाएगी और उसकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी और इस्लाह की कोशिश करने के लिए, सुधारने के लोग हमेशा तैयार हैं। किसी तरह चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन कभी कोई ना कोई लफ्ज़िश हो सकती है। लेकिन दीनी मामले में कभी किसी लफ्ज़िश को अप्रूव नहीं किया जा सकता है, कभी उसको गवारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसके सिलसिले में तंबीह की गई। इस तंबीह के बाद
रब करीम ने फिर आखिरत की तरफ इंसानों को तवज्जो दिलाई और बताया कि देखो हर आदमी जिम्मेदार है कि वो अपने आप को सही रास्ते पर रखे और अपने फलाह व कामरानी के लिए कोशिश करे, ख्वाह दुनिया कितना बिगड़ जाए। अगर इंसान तनहा अपने आप को सुधार सकता है और कामयाबी के रास्ता खोल सकता है तो वही सही। लोग न सुधरें, तमाम कोशिशों के बावजूद इंसान मानने को तैयार नहीं है, तो कम से कम इंसान ये है कि मायूस ना हो। मायूसी को कोई मसला नहीं है, अपने आप को सही रास्ते पर रखे, अपने अहले यार को सही रास्ते पर रखे। और दूसरी ये कि सबसे पहले जिम्मेदारी भी ये होती है कि इंसान अपने घर से शुरू करे। अगर अपने घर से शुरू करता है, अपने आप को सुधार लेता है, अपने बाल बच्चों को सुधार लेता है, तो उसके लिए कभी इम्कान होता है कि एक ताकतवर इंसान बन करके समाज माशरे में उतरे और लोगों की एग्जाम्पल बन जाए। ये आओ दीन की तरफ, जो मैं कह रहा हूँ सच है, उस पर मैं कायम हूँ, मेरे घर वाले कायम है, लिहाजा इसकी तरफ तुम भी आओ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरत के सिलसिले में जो कामयाबी हो सकती है नेक लोगों की, उसके सिलसिले में तवज्जो दिलाई कि लोगों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि आखिरत के बारे में तवज्जो दें और याद करें कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, पुल सिरात पर लोग गुजरेंगे और मैदान महशर की हल्लाकियों से गुजर करके पुल सिरात पर गुजरेंगे, तो यही दुनिया में नेकियां उनके लिए काम आएंगी। वहाँ तारीकी में रोशनी बन जाएगी और इंसान के लिए सवारी बन जाएगी। इंसान आसानी से तेज़ी से गुजर जाएगा और फिर उसके बाद जो कामरानियाँ हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी नेमतों से साथ काम फरमाएगा, उनको जन्नत अता फरमाएगा और सारी नेमतों से खुश व खुर्रम होंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसूली तौर पर बयान फरमाया कि देखिए इस दुनिया में हक़ व बातिल दो रास्ते होते हैं। हक़ की ताकत होती है, हक़ को अपने रास्ते पर कायम रहना चाहिए और कभी बातिल के साथ किसी तरह साजबाज और किसी तरह उसके साथ नरम गोशा नहीं इख्तियार करना चाहिए, तभी हक़ वाज़ेह हो पाएगा और खल्त मल्त होने से पोल्यूटेड होने से बच सकेगा। उसके बाद मिसाल दी अल्लाह ताला ने कि इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है, मुख्तलिफ ग्रुप के लोग होते हैं और आला मेयार के लोग होते हैं, बस्तर मेयार के लोग हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो आला मेयार के नेक और दीनदार लोग हो सकते हैं उनकी मिसाल पेश कर दी और जो पस्तरीन लोग हो सकते हैं उनकी मिसाल पेश कर दी। और ये कि अच्छे घराने में भी बुरे तर लोग हो सकते हैं और बुरे तर घराने में अच्छे लोग हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने मिसाल पेश करके इंसानों को बताया कि देखिए ये कोई ज़मानत नहीं है किसी की कि अच्छे घर में अच्छे ही लोग हो सकते हैं या बुरे घर में बुरे ही लोग हो सकते हैं, बल्कि असल कामयाबी का राज इसमें होता है कि इंसान कितना अपने तौर पर सही काम कर सकता है, सही ढंग से रह सकता है और सही एतबार से इस दुनिया में अपने को ढाल सकता है। तो इन तमाम सूरतों में अल्लाह ताला ने जो मदनी सूरतें हैं उसका अंदाज, उसका उसलूब तफाहुम का है, समझाने का है और बड़ी मोहब्बत का है और उसमें ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला सारे अपने बंदों को बड़े ही लुत्फ़ करम से समझा रहे हैं, सीधा रास्ता दिखा रहे हैं और आखिरत के बारे में जो अच्छे बुरे जो अंजाम हो सकता है उसको बता रहे हैं। इसके मुकाबले में मक्की आयतों में रोब है, जलाल है, तमकनत है और हैबत है, लेकिन इन तमाम ग्रुप का ये तासीर है, उसकी खुसूसियत और खूबी है कि तमाम मसाइल को सामने रखे गए और उन पर ज़ज्र तौबीख से ज़्यादा ज़ज्र तौबीख अगर है तो मुनाफिकीन पर है, ज़ज्र तौबीख है तो गलतकारों पर है, ज़ज्र तौबीख है तो बातिल परस्तों पर है। लेकिन जो रास्ते हक़ पर चलने वाले हैं, जो मुसलमान हैं, जो सही दीन पर कायम हैं, उनको अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत से और बड़े लुत्फ़ करम से गाइड किया है, समझाया है। असल जान कुरान की उसलूब हुआ करती है। उसलूब देखिए बस औक़ात हर सूरत का उसलूब अलग हो सकता है, हर सूरत मुख्तलिफ सूरतों के ग्रुप का अलग उसलूब हो सकता है और मदनी और मक्की सूरतों के ग्रुप का उसलूब अलग अलग हो सकता है। तो ये मदनी सूरतें इसमें पूरे ग्रुप का देखिए तो लगता है एक तरह से उसका मिजाज, उसका उसलूब और तरीका एक ही है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तामीर माशरा, इस्लामी माशरा की तामीर के सिलसिले में तवज्जो दी गई है और जो बिगाड़ इस रास्ते में आ सकता है और जो बिगाड़ने वाले हो सकते हैं उनको इसमें वाज़े किया गया है, क्लियर किया गया है और उनको वाज़े और ये बता दिया गया कि इनसे मुतवज्जे रहना, चौकन्ना रहना ताकि किसी तरह इनकी वजह से बिगाड़ न पैदा होने पाए और मुस्लिम समाज व माशरा
जिस रास्ते पे चल रहा है स्मूथली चलता रहे और किसी तरह की उलझन और परेशानी का शिकार ना हो। जाहिर है एक कामिल माशरे को बनाने के लिए ये तमाम सूरतें पैदा होती हैं कि वो बातिल भी होते हैं, हक परस्त भी होते हैं। बातिल की अपनी महाजाराई होती है, उनकी अपनी कशमकश होती है। इन तमाम सिफात और किरदार को अगर वाज़ेह न किया जाए तो बसा औक़ात ये लोग जो कामिल माशरा बनाने की जिद्दोजहद है, जो कामिल इंसान को बनाने की जिद्दोजहद है, वो कदम कदम में रुकावट बन सकते हैं, आड़े आ सकते हैं। तो मदनी माशरा दुनिया भर के लिए, क़यामत तक के लिए, रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाली माशरा है। अल्लाह ताला को मतलूब था कि माशरा ऐसा मिसाली बन जाए कि रहती दुनिया तक के लिए मनारे नूर बन जाए। लिहाजा उसको ये मतलूब था कि जितने भी किरदार हो सकते हैं, निफाक के किरदार हो सकते हैं, कुफ्र के किरदार हो सकते हैं और माल और दौलत के लालच के किरदार हो सकते हैं, आल औलाद के सिलसिले में इंसान फितने में पैदा हो सकता है, उसकी उलझनों परेशानियाँ हो सकती हैं। इन तमाम उलझनों को भी बता दिया, साथ ही साथ कि हौसला हो, हिम्मत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर लगन और तड़प पैदा हो, अंजाम भी बता दिया गया है। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अब 6 प्रकार के स्वादिष्ट प्रिया पापड़ का मजा लीजिए। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाले ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। जन्नत किनको मिलने वाली है, जहन्नम को किसको मिलने वाली है, जन्नत की आशाइशें क्या हैं, जहन्नम की मुश्किलात और कुल्फतें क्या हैं। और फिर ये कि इसके साथ साथ हर सूरत में तकरीबन तज़कीर भी मौजूद है, इबरत भी मौजूद है। दूसरे गलतकार कौमों के सामने रखकर इबरत और तज़कीर की बात की गई है और ख़ुद मुसलमानों के ज़मीर को, उनके एहसासात को जगा करके ये उनको सही रास्ते पे लाने और एक बेहतरीन पक्का और सच्चा मिसाली इंसान बनाने की कोशिश की गई है। तो ये है इन आयतों का खुलासा और ये है इन सूरतों का खुलासा। आज भी ये पैगाम ज़िंदा है, ताबिंदा है। आज भी इसका उसलूब तरोताज़ा है। आज भी अगर इन तालीमात को सही मानों पर में मुसलमानों पर अप्लाई किया जाए और मुस्लिम समाज माशरे में इस पर अमल करने की कोशिश की जाए और जिन अल्लाह ताला ने किरदार को
اور جن صفات کو یہاں واضح کیا ہے کہ خطرناک ہو سکتے ہیں ان کو پہچانا جائے تو آج بھی مسلم سماج و معاشرہ پاک صاف ستھرا کلین اور بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اگر آنکھ بند کر کے چلا جائے, اسلامی تعلیمات کو, قرآن کی تعلیمات کو سامنے نہ رکھا جائے تو ہر طرف جو اسلام کی بگڑی ہوئی شکل پیش کی جا رہی ہے اور یہاں حق و باطل کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے, وہ تمام چیزیں گڈمٹ ہوتی ہیں, ہوتی رہیں گی. لیکن پھر بھی یہ پیغام زندہ رہے گا اور قیامت تک لیے جو بھی انسان اپنے آپ کو اس میزان پر تول کر کے سیدھا سادھا بنانا, اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے, اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. اور جو اس راستے پہ نہیں چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انجام واضح کر دیا گیا ہے, ان کے لیے بھی کیا نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس کو بتا دیا گیا ہے. یہ اب ہر انسان کی اپنے ہمت و حوصلے کی بات ہے کہ قرآن کی ان تعلیمات کو کتنا سمجھتا ہے اور قرآن کی اس اسلوب کو اور اس گروپ آف صورت کو کس ڈھنگ سے اللہ نے پیش کیا ہے, کس اسلوب میں پیش کیا ہے اور کن ٹاپک کو پیش کیا ہے اور کن دل و دماغ کو جھنجھوڑا خطاب کیا ہے. ان تمام معانی کو اور ان تمام مفاہیم کو اور ان تمام جو احساسات دلائے گئے ہیں ان کو ہم اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس کی برکات اور تجلیات سے فائدہ اٹھائیں. اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ یہ نازل ہی ہوا ہے, اس میں قرآن نازل ہوا ہے, تو زیادہ سے زیادہ انسان کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اس مہینے میں ان آیتوں کو, ان چھوٹی چھوٹی صورتوں پر غور کرے اور غور کرنے کے بعد اپنی تعمیر, اپنے معاشرے کی تعمیر کرے, اپنی سیرت کی تعمیر کرے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے سجا بنا کر پیش کیا ہے اور ان صورتوں میں جس طرح سماج و معاشرے کی جو بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں یا اس میں خلفشار ہو سکتا ہے, جو الجھنیں ہو سکتی ہیں, ان تمام چیزوں کو جس واضح شکل میں پیش کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کے بعد ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں. جو لوگ قرآن شریف کی تلاوت کے شوقین ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھ نہیں سکتے ہیں, اگر ان صورتوں کو یا اس پارے کی آیتوں کو پڑھیں اور غور کریں تو آج بھی سماج و معاشرے میں جتنی کردار موجود ہیں, جتنی خرابیاں موجود ہیں, جتنی الجھنیں موجود ہیں, ان تمام چیزوں کو آدمی پہچان سکتا ہے, جان سکتا ہے اور بڑی آسانی سے اپنا سیدھا راستہ اختیار کر سکتا ہے, سیدھا راستہ پہچان سکتا ہے اور اس کو حق شناسی کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے راستے کو, اپنے کامیاب راستے پہ چل سکتا ہے. قرآن کا اسلوب سب سے جاندار اسلوب ہے. یہ اسلوب کا کمال ہوتا ہے کہ اگر اس کی موہ دل میں بیٹھ جائے اور اس کو پڑھے, خاص طور پر اس صورت میں جس لب و لہجے میں انسان کو خطاب کیا گیا ہے اور جس انداز سے مسلم سماج و معاشرے کو خطاب کیا گیا ہے, اتنا پیارا لب و لہجہ ہے کہ اگر آدمی اس کو صحیح معنوں میں دلچسپی سے پڑھے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں, اس کے دل و دماغ میں چیزیں بیٹھ جائیں, اس کے دل کو ٹھنڈک نصیب ہو, اس کو لطف آئے اور مزہ آئے کہ قرآن شریف کے پڑھنے کا لطف کیا ہوتا ہے, مزہ کیا ہوتا ہے, اس کی تلاوت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. آج رمضان کے مہینے میں یہ پارہ مسلمانوں کے لیے خطاب کرتا ہے. اس کا پیغام ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھیں, اس صورت کو پڑھیں, اس پارے کو پڑھیں اور ایک پرمسرت زندگی کیا ہو سکتی ہے, ایک پرلطف زندگی کیا ہو سکتی ہے, اس کا مزہ لیں, اس کا لطف اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی معنی پر غور کریں, اس کو پڑھیں, اس کے لب و لہجوں کو جانچیں اور پرکھیں اور جو شیرینی, جو لذت قرآن شریف کے پڑھنے میں ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائے. قرآن پڑھنے کی ایک بشاشت ہوا کرتی ہے, یہ بشاشت اگر مل جائے انسان کو, دل میں فرحت نصیب ہو جائے تو انسان کو بڑی دولت مل جایا کرتی ہے. اور اگر ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو انسان بشاشت حاصل کرنے کے لیے پڑھے تو اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا 28ویں پارے کا ترجمہ, تلخیص, تفسیر. اللہ مجھ کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے, پڑھنے اور اس کے پیغام کو ناواقف انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں. انوار قرآن, ETV اردو, راموجی فلم سٹی, حیدرآباد 501512. دیجیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।